جس جا ملائکہ کی حد انتہا رہے، جس جا ملائکہ کی حد انتہا رہے، عرفان اہل بیت کی وہاں ابتدا رہے، اہل بیت کی وہاں ابتدا رہے۔ اور اس واسطے خدا نے کیا پنجتن کو خلق، اس واسطے خدا نے کیا پنجتن کو خلق، خود اپنے واسطے بھی کوئی آئینہ رہے، کوئی آئینہ رہے، خود اپنے واسطے بھی کوئی آئینہ رہے۔ اور چار مصرے دیکھیے کہ بٹ رہی ہے خم کے منبر سے ولایت کی شراب، بٹ رہی ہے خم کے منبر سے ولایت کی شراب، جز منافق جو پیے گا پارسا ہو جائے گا، بٹ رہی ہے خم کے منبر سے ولایت کی شراب، جز منافق جو پیے گا پارسا ہو جائے گا۔ دن ہے 39واں خیبر میں آؤ یا علی، دن ہے 39واں خیبر میں آؤ یا علی، ورنہ کل 40واں اسلام کا، ورنہ کل 40واں اسلام کا ہو جائے گا۔ بہت سے دو مطلب 4واں شعر پیش کر رہا ہوں، ایک نعرہ ثبات کا سہارا، نعرہ حیدری، صدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات، کہ جو کفر و حق کے درمیان اگر کوئی لکیر ہے، جو کفر و حق کے درمیان اگر کوئی لکیر ہے، تو کربلا فدق مباہلہ ہے یا غدیر ہے، کفر و حق کے درمیان اگر کوئی لکیر ہے، تو کربلا فدق مباہلہ ہے یا غدیر ہے۔ اور یہ حسن مطلع دیکھیں کہ یہ رب کی خاص نعمتوں میں نعمت کبیر ہے، یہ رب کی خاص نعمتوں میں نعمت کبیر ہے، ہزار دن ہے عید کے غدیر پھر غدیر ہے، ہزار دن ہے عید کے غدیر پھر غدیر ہے۔ رسول پاک کو یہ حکم قادر و قدیر ہے، رسول پاک کو یہ حکم قادر و قدیر ہے، نبھائیے غدیر میں جو عہد ذوالعشیر ہے، نبھائیے غدیر میں جو عہد ذوالعشیر ہے۔ یہ شعر دیکھیے قبلہ کے واللہ یعصمک من الناس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ نبھائیے غدیر میں جو عہد ذوالعشیر ہے۔ اب مزاج آیت غدیر کہہ رہا ہے صاف صاف، مزاج آیت غدیر کہہ رہا ہے صاف صاف، یہ حاجیوں کی بھیڑ میں گروہ ایک شریر ہے، مزاج آیت غدیر کہہ رہا ہے صاف صاف، یہ حاجیوں کی بھیڑ میں گروہ ایک شریر ہے، یہ حاجیوں کی بھیڑ میں گروہ ایک شریر ہے۔ شعر دیکھیں کہ گرا تھا سنگ خہر کل بھی منکر غدیر پر، گرا تھا سنگ خہر کل بھی منکر غدیر پر، غدیر آج بھی منافقوں کے دل پر تیر ہے، غدیر آج بھی منافقوں کے دل پر تیر ہے۔ اور علی کی جانشینی دیکھ کر خدا نے یہ کہا، علی کی جانشینی دیکھ کر خدا نے یہ کہا، ولایت علی ہماری نعمت اخیر ہے، ولایت علی ہماری نعمت اخیر ہے۔ الگ الگ ہے یاور آپ کے کلام کا اثر، الگ الگ ہے یاور آپ کے کلام کا اثر، کسی کے حق میں شیر ہے کسی کے حق میں صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ قدیری، نعرہ قدیری، نعرہ قدیری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کا آخری شعر ہم لوگوں کے لیے ہے جو علی
जानते हैं। तो चौथा मिसरा उनकी नजर है कि बरसों से जुल्फ़िकार अली है नियाम में। क्या कह रहे? वाह बरसों से जुल्फ़िकार अली है नियाम में, सोई नहीं वो जागी हुई है नियाम में। जब तक ये तेग होगी ना बाहर नियाम से, समझो तुम्हारी मौत बंधी है नियाम में। समझो तुम्हारी मौत बंधी है नियाम में। मतलब संक्षेप पेश कर रहा हूँ। गदीर खुम की खुशी इस तरह मनाना है, गदीर खुम की खुशी इस तरह मनाना है, अली के चाहने वालों को मुस्कुराना है। गदीर खुम की खुशी इस तरह मनाना है, अली के चाहने वालों को मुस्कुराना है। उसने मतलब पेश है कि दुरूद पढ़ के गुनाहों को बख्शवाना है। दुरूद पढ़ के गुनाहों को बख्शवाना है, जो दुश्मनाने अली है उन्हें जलाना है। जब मुलादा के अली का जिक्र इबादत है, ये नबी ने कहा। अली का जिक्र इबादत है, ये नबी ने कहा। उन्हीं के जिक्र को अशआर में सुनाना है। उन्हीं के जिक्र को अशआर में सुनाना है। गदीरी जाम लिए आ रहे हैं देखो मलक, गदीरी जाम लिए आ रहे हैं देखो मलक, या यूं कहूँ कि गदीरी जाम लिए देखो आ रहे हैं मलक। मैं विलाए अली पी के झूम जाना है, मैं विलाए अली पी के झूम जाना है। सिवाय मुस्तफाओ किबरिया बताओ जरा, सिवाय मुस्तफा ओ किबरिया बताओ जरा, है कौन जिसने मुकम्मल अली को जाना है। सिवाय मुस्तफा ओ किबरिया बताओ बताओ जरा, है कौन जिसने मुकम्मल अली को जाना है। इस सिलसिले का आखिरी शेर है कि बनी है किस लिए दोज़ख, तो हमने बढ़ के कहा। बनी है किस लिए दोज़ख, तो हमने बढ़ के कहा कि दुश्मनाने अली का वही ठिकाना है। और एक मतलब संक्षेप पेश कर रहा हूँ कि सराह दी गई थी, जिसमें हमारे यावर साहब तशरीफ फरमा नहीं थे। आए थे अकमल तो उतनी दिन कामिल हो गया। मतलब पेश है कि नूर की महफिल में शादा कोई बिस्मिल हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा। नूर की महफिल में शादा कोई बिस्मिल हो गया। नूर आखिर दीदे दिल है वो हासिल हो गया। नूर आखिर दीदे दिल है वो हासिल हो गया। आपके बैतुल शरफ का या अली रुतबा है ये, आपके बैतुल शरफ का या अली रुतबा है ये। आसमां का भी फरिश्ता दर का साइल हो गया। आसमां का भी फरिश्ता दर का साइल हो गया। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, उसी ज़माने में पेश कर रहा हूँ कि इल्म के दर से हुआ इंसान जो भी मुनहरिफ, इल्म के दर से हुआ इंसान जो भी मुनहरिफ, इल्म के वो शहर की नजरों में जाहिल हो गया। यूं हर एक मोमिन को हासिल
नेमते उज़्मा हुई। यूं हर एक मोमिन को हासिल नेमते उज़्मा हुई, आयते अकमल तो उतरी, दीन कामिल हो गया। आयते अकमल तो उतरी, दीन कामिल हो गया। हाँ, बड़ी तादाद में सबको हदीसें याद हैं। क्या बात है। हाँ, बड़ी तादाद में सबको हदीसें याद हैं। खुम के खुतबे से मुसलमान क्यों तो गाफिल हो गया। हाँ, बड़ी तादाद में सबको हदीसें याद हैं। उनके खुतबे से मुसलमान क्यों तो गाफिल हो गया। मुस्कुरा उठी जिदारे काबा इस्तेकबाल में, मुस्कुरा उठी जिदारे काबा इस्तेकबाल में, काबे में जब बोलता कुरान नाजिल हो गया। मुस्कुरा उठी जिदारे काबा इस्तेकबाल में, काबे में जब बोलता कुरान नाजिल हो गया। कश्तिये बोग़्ज़े अली का ये सफर महंगा पड़ा। कश्तिये बोग़्ज़े अली का ये सफर महंगा पड़ा, लौट कर आना वहां से और मुश्किल हो गया। लौट कर आना वहां से और मुश्किल हो गया। हर गुलामे मुर्तज़ा का हाँ यही मेयार है। काफी हर गुलामे मुर्तज़ा का हाँ यही मेयार है। कोई काबिल, कोई आखिल, कोई फाजिल हो गया। हर गुलामे मुर्तज़ा का हाँ यही मेयार है। कोई काबिल, कोई आखिल, कोई फाजिल हो गया। आखिरी शेर पेश है कि देख कर मरहब को दो हिस्सों में बोले जिब्राइल। देख कर मरहब को दो हिस्सों में बोले जिब्राइल, जंगे खैबर में अली का वार आदिल हो गया। देख कर मरहब को दो हिस्सों में बोले जिब्राइल, जंगे खैबर में अली का वार आदिल हो गया। मक्ता मुलायदा हो के अर्श से आती है हर पल ये सदा सबको शकील। अर्श से आती है हर पल ये सदा सबको शकील। अर्श से आती है हर पल ये सदा सबको शकील। इन सना खानों में आज एक और शामिल हो गया। नूर की महफिल में शादां कोई बिस्मिल हो गया। नूर आकर दीदाए दिल है वो हासिल हो गया। सब वो नई की रदीफ में सुना दीजिए अपने अर्श तवल्ला कुल्दे मवद्दत फिक्र सना का महवर। अर्श तवल्ला कुल्दे मवद्दत फिक्र सना का महवर है। दोष मोहम्मद पर है अली और कैफ में डूबा मंजर है। दोष मोहम्मद पर है अली और कैफ में डूबा मंजर है। और दुश्मन हैदर कतराता है मदहो सना की महफिल से। क्या बात है।
दुश्मन हैदर कतराता है मधुर सफर की महफिल से। अरे फूल का दुश्मन बन बैठा है आखिर पर उसकी पत्थर। अरे ये शेर के रमज़े कुरान जाने हैं तो ज़ाते खुदाया ज़ाते नबी। क्या कहने रमज़े कुरान जाने हैं तो ज़ाते खुदाया ज़ाते नबी। ज़िक्र अली के नूर की अज़मत अक्ल बशर से बाहर है। सुभान अल्लाह। ये भी शेर के बुग़्ज़े अली है जिसके लहू में उससे सना क्या मुमकिन है। क्या कहने बुग़्ज़े अली है जिसके लहू में उससे सना क्या मुमकिन हो। ज़हन है उसका सहरा जैसा ज़िक्र भी उसकी बंजर है। अरे बुग़्ज़े अली है जिसके लहू में उससे सना क्या मुमकिन हो। सुभान अल्लाह सुभान ज़हन है उसका सहरा जैसा फ़िक्र भी उसकी बंजर क्या है। कहने वाह वाह अरे हैदरी हैदरी अरे गदीरी अरे गदीरी अरे गदीरी अरे गदीरी अरे गदीरी अरे गदीरी बात मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सादा मुझे को सुनाता हूँ पानी की ज़मीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। खफी के वार से बचकर कोई निकलता क्या। खफी के वार से बचकर कोई निकलता क्या। और जली के आगे किसी का चराग जलता क्या। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान खफी के वार से बचकर सुभान कोई अल्लाह, निकलता सुभान क्या। जली के आगे किसी का चराग जलता क्या। सुभान अल्लाह और नबी का हो गया दुश्मन अली से बुग़्ज़ में शेर। नबी का हो गया दुश्मन अली से बुग़्ज़ में शेख। था बोझ ऐसा गुनाहों का फिर संभलता क्या। नबी का हो गया दुश्मन अली से बुग़्ज़ में शेख। था बोझ ऐसा गुनाहों का फिर संभलता क्या। था टूटना उसे हारिस पे सो वो टूट पड़ा। था टूटना उसे हारिस पे सो वो टूट पड़ा। तलब किया हुआ असर से अजाब टलता क्या। फिर पढ़ दीजिए दानियल भाई टूटना उसे हारिस पे सो वो टूट पड़ा। क्या बात तलब किया हुआ असर से अजाब टलता क्या। अरे वाह तलब किया हुआ असर से अजाब टलता क्या। और ये सहाबी के चार मुसलसल शेर है। इधर नहीं है इधर के। सहाबियों में था बूज़र की तरह सच्चा कौन। सहाबियों में था बूज़र की तरह सच्चा कौन। और कोई भी घर से खिलाफे हवस निकलता क्या। सहाबियों में था बूज़र की तरह सच्चा कौन। तो कोई भी घर से खिलाफे हवस निकलता क्या। तो खमीर खमीर फाजिले तीनत से था दिले मिक़दार। खमीर फाजिले तीनत से था दिले मिक़दार। समर वफा के ना देता तो फिर सलवात पढ़िए। दिले मिक़दार और समर वफा के ना देता तो पेड़ फलता क्या। वफा के ना देता तो पेड़ फलता क्या। और कई सदी से थे सलमान तिश्ने इरफान। कई सदी से थे सलमान तिश्ने इरफान। अगर ये जाम ना मिलता तो दिल बहलता क्या। सलमान तिश्ने इरफान।
वाह अगर ये जाम ना मिलता तो दिल बहलता क्या? वाह तो असर दिखाती भला क्यों शहादते अम्मार, असर दिखाती भला क्यों शहादते अम्मार, अली के हक का जो मुनकिर था सच उगलता क्या? वाह अली के हक का जो मुनकिर था सच उगलता क्या? और शेर लिखे कि वो हम सफर ही ना था, हम मिल गया था रास्ते में, वो हम सफर ही ना था और मिल गया था रास्ते में, वो साथ चलता भी मेरे तो साथ चलता क्या? सुने शेर कि वो हम सफर ही ना था और मिल गया था रास्ते में, वो साथ चलता भी मेरे तो साथ चलता क्या? और गदीर मेरा वतन करबला मेरी मंजिल, गदीर मेरा वतन करबला मेरी मंजिल, मैं मिसले अहले जमल रास्ता बदलता क्या? मेरा वतन करबला मेरी मंजिल, और मैं मिसले अहले जमल रास्ता बदलता क्या? और दिले अजीज सलामत रहा दिमश्क में, दिले अजीज सलामत रहा दिमश्क में भी, ये मोम का कोना था धूप से पिघलता गया, ये मोम का कोना था धूप से पिघलता गया। तो भरा हुआ था सकीफाई जहर फितरत में, क्या बात है भरा हुआ था सकीफाई जहर फितरत में, फतिया शहर कुछ इसके सिवा उगलता क्या? फतिया शहर कुछ उसके सिवा उगलता क्या? और आखिरी दो शेर है कि अमीर शहर के सिक्के कभी ना थे मतलूब, अमीर शहर के सिक्के कभी ना थे मतलूब, मैं मसलहत की बदलती फजा में ढलता क्या? क्या बात है वाह 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 मैं मसलहत की बदलती फजा में ढलता क्या? वाह है सजदाए दरे हैदर मेरी अना का गुरूर, क्या बात है सजदाए दरे हैदर मेरी अना का गुरूर, यहाँ जब ही ना लगड़ता तो हाथ मिलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दे दो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन सल्लल्लाहु इस ईद सईद के मौके पर जो शरीयत मुहम्मदी में सबसे अजीम मर्तबा रखने वाली ईद, इसकी मुबारकबाद हम तमाम की जानिब से एक बावाज़ बुलंद दुरूद के साथ इमाम ज़माना की बारगाह आज की ये शब और आने वाला दिन सरनामा कलाम इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद और हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका नाम अली और वो खुद भी बज़ाते अली फ़ज़ाइल अली बयान कर रहे हैं। और फ़ज़ाइल अली बयान करते हुए गदीर की अज़मत बयान करते हुए इमाम ने एक जुमला कहा, आठवें इमाम ने एक जुमला कहा कि जब रोज़े गदीर, पहले छठवें इमाम से भी कई सवालात हुए, ईद गदीर की अज़मत हर मासूम ने पेश की, छठवें इमाम से सवाल किया गया फर्जंद रसूल क्या
ईद कुर्बान और ईद रमज़ान के अलावा भी कोई मुसलमानों की ईद है, तो इमाम ने फरमाया कि यकीनन ईद उल ज़ुहा और ईद रमज़ान से भी अलावा एक अजीम मुसलमानों के लिए ईद अल्लाह ने करार दी है, जिसकी अजमत इन दोनों ईदों से बड़ी है। अगर वो ईद ना होती तो फिर इस्लाम में कोई ईद बाकी ना रहती। इस दिन के फ़ज़ाइल इमाम ने पढ़े और फिर 8वें इमाम की यह हदीस हमारे लिए बिलखुसूस मोमिनीन के लिए कि इमाम ने फरमाया कि जब रोज़े गदीर, ईद गदीर गुस्ल करने का सवाब, ईद गदीर रोज़ा रखने का सवाब, ईद गदीर नमाज पढ़ने का सवाब, और ईद गदीर एक मोमिन की तरफ मुस्कुरा कर देखने का सवाब। सिर्फ रिश्ता विलायत के तकाजे से एक मोमिन की तरफ मुस्कुरा के देखना और दस्ते मुबारक मोमिन के हाथ में अपना हाथ देना और उसके बाद अहद करना और यकीनन हाथ में हाथ रख कर वादा करना और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना, एक दूसरे के घर मुबारकबाद पेश करने के लिए जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। और इसके अलावा सिर्फ ये ईद ऐसी है कि जिसमें इमाम ने फरमाया कि खुद सजने का और संवरने का सवाब अल्लाह ने रखा है, अपने आप को जीनत देने का सवाब इतना रखा है अल्लाह ने। जैसे अभी एक शेर में पढ़ा गया कि गुनाहों को बख्शवाना है, दुरूद पढ़ के गुनाहों को बख्शवाना है। दुरूद पढ़ने का सवाब। और ये वो दिन है कि अगर हमको नसीब हो गया हमारी ज़िंदगी में तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए हम इस दिन, ये मौका है कि हम अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। और गुनाहों को बख्शवाने के लिए करना क्या है? अपने आप को जीनत देना है, अपने घर को जीनत देना है, अपने घर को मुज़य्यन करना है, मोमिनीन की तरफ मुस्कुरा के देखना है और अमाल इबादतें करनी है और वारिसे गदीर की बारगाह में गदीर की मुबारकबाद पेश करनी है और गदीर का ऐलान करना है, अलल ऐलान गदीर का शोर करना है, गदीर का ऐलान करना है ताकि सबको मालूम हो कि आज कौन सा दिन है, आज क्यों हम खुशी मना रहे हैं। और ईद गदीर वो ईद है, ये वो दिन है कि 10 हिजरी 18 ज़िलहज। वाक़या जोग्राफी अहमियत गदीर की अभी जाहिर करने का मौका नहीं है कि किस तरीके से काफिला हज से पलटा और फिर कितनी जगह पर रसूलुल्लाह ने सोचा, कितनी जगह पर रसूलुल्लाह ने ये ख्याल किया कि अब पैगाम पहुंचा दे, अब पैगाम पहुंचा दे, मगर हर बार रसूलुल्लाह खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि रसूल वही के बगैर कलाम नहीं करता, वही का इंतज़ार। और फिर उस मकाम को जिसका तायुन खुद खुदावंद आलम कर चुका था, उस मकाम पे काफिला पहुंचा और वहाँ पर रुक कर रसूलुल्लाह ने मुनासिब जाना कि यही मकाम मुनासिब है कि यहाँ पर ऐलान किया जाए, यहाँ पर वादे को वफा किया जाए, यहाँ पर खुदा के भेजे हुए हुक्म को बजा लाया जाए। मगर फिर भी खामोश रहे। क्यों? इसीलिए कि रसूल पाबंदे वही होता है, वही का इंतजार था। जिब्रील नाजिल हुए ये कहते हुए या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, क्या रसूल पहुँचा दो कि जो आपको पहुँचाया गया था, जो हुक्म खुदा था वो पहुँचा दो। यहाँ रुक कर इतना अर्ज करूँ, देखिए खुदावंद आलम ने जो कायनात को मुज़य्यन किया, हम नहीं जानते कि कब से ये कहकशाएं बाकी हैं, हम नहीं जानते कि कब से ये सूरज अपनी हरारत और अपनी तमाज़त से ज़िंदगियां आबाद कर रहा है, कब से ज़मीन को आबाद रखे हुए है। हम नहीं जानते कि हमारा ये कहकशा न जाने कितने अरसे से रोज़ शब में अपनी ठंडी रोशनी मोमिनों तक, लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाता है। हम नहीं जानते कि कितने सैयारे, कितने सितारे अल्लाह ने कल किए, कब से हैं, मगर इन तमाम का दारो मदार टिका हुआ था गदीर के मैदान तक। जो सफ़र शुरू हुआ, इस कायनात की हसीन तख्लीक का सफ़र जो अल्लाह ने आगाज़ किया, और वो तख्लीक होते हुए जनाब आदम से होते हुए ख़ातम तक पहुँची, और सिलसिला दर सिलसिला एक के बाद एक हादी आता रहा, एक के बाद एक ज़माना गुजरता रहा, मगर तमाम का दारो मदार टिका हुआ गदीर के मैदान पर था। कि अगर, और गदीर का मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाजी आ गए रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, बल्कि गदीर का मैदान मिसाल है आलम अरवाह की, मुकम्मल मिसाल है आलम अरवाह की। और जो ऐलान रिसालत में आपने किया तो ऐसे ऐलान नहीं कर दिया, पूरा खुतबा है रसूलुल्लाह का, और इतना तवील और इतना अजीम खुतबा है कि खुदा की तारीफ की और फिर तकलीफ कायनात पे रोशनी डाली, फिर उसके बाद
तमाम बातों को अर्ज किया, उसके बाद एक सवाल किया रसूल अल्लाह ने। सवाल क्या किया? गिरफ्तार किया। तमाम जितने मौजूद थे सबको गिरफ्तार किया एक जुमले में। ऐसे ही मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला नहीं कहा, बल्कि ये कहने से पहले तमाम लोगों से एक इकरार लिया रसूल अल्लाह ने, और इकरार के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। और चूंकि रसूल मदीना है, इल्म का शहर है, इल्म का, तो जानते हैं कि क़यामत तक क्या होने वाला है। तासुब का चश्मा पहनने वाले बदबख्त न जाने कौन से लफ्ज का क्या मतलब निकालने वाले हैं। जानते हैं रसूल के लोग ये तो कहेंगे कि रसूल ने फहाज़ा अली मौला जरूर कहा, मगर हम भी मानते हैं कि रसूल ने मौला कहा। हम भी मानते हैं कि रसूल ने कहा कि मैं जैसा मौला अली वैसे मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और आज ये कहा जा रहा है कि हम भी मानते हैं कि गदीर के मैदान में रसूल ने कहा। फिर फर्क क्या? आज इनकार नहीं किया जा रहा, इकरार हो रहा। बड़ी बड़ी महफिलें हो रही हैं, इकरार किया जा रहा है गदीर का कि हाँ गदीर का मैदान सजा था, रसूलुल्लाह ने अली को हाथों पे उठाया और कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला। फिर फर्क क्या? इकरार करने में फर्क क्या हो गया? फर्क ये हुआ कि लोगों ने, चूंकि गदीर को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि गदीर के रावी इतने हैं कि अल्लाह ने एहतिमाम ऐसे किया, एक गदीर और एक हदीस किसा, ये दो रिवायतों के रावी सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं। सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई रिवायतों के रावी इस्लाम को मिले वो तो दो ही रिवायतें हैं, एक हदीस किसा की रिवायत है, एक गदीर की रिवायत है, जो सबसे ज्यादा मुस्तनद मानी गई। तो अब झुटलाया तो नहीं जा सकता गदीर को, इनकार तो नहीं किया जा सकता गदीर का। फिर एक रास्ता निकाला जाए, जैसे अरबी में एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं, तो लोगों ने ये तस्लीम किया कि ठीक है रसूलुल्लाह ने मौला कहा, तो अब मौला के माने क्या है? मौला के कई मायने निकलते हैं, कई मायने निकलते हैं मौला के। चूंकि अरबी जुबान है तो अरबी जुबान का फलसफा ये है कि एक एक लफ्ज़ के 70-70 मायने भी निकल जाते हैं। तो मौला लफ्ज़ का एक माना उन्होंने उठाया, दोस्त। अलल ऐलान दुनिया भर में मौला लफ्ज़ के मायने उन्होंने दोस्त निकाले, और दोस्त निकाल के कहा कि ठीक है रसूलुल्लाह ने कहा मैं जिसका दोस्त अली उसका दोस्त, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। मगर ये सब क्यों किया? ताकि वलायत का मनसब छुप जाए, ताकि वली का मनसब छुप जाए, ताकि अलियन वलीउल्लाह ना कहना पड़े। इसलिए मौला के वो लफ्ज़ के मायने लिए, मगर वो भी रिसालत मुआब हैं। ऐसे ही नहीं कह दिया मौला का लफ्ज़, बल्कि वो मौला कहने से पहले एक इकरार लिया खुतबे के इख्तिताम पर। वो इकरार के साथ वो ऐलान किया। तो मतलब ये है कि रिसालत मुआब ने उस लफ्ज़ के माने उस इकरार में जाहिर कर दिए कि अब क़यामत तक वो लफ्ज़ मौला के माने कोई और दूसरा बदल ही नहीं सकता। रिसालत मुआब ने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद बीच बीच में रोका, खुतबे को रोक के सवालात किए, फिर खुतबे को जारी किया, फिर सवालात किए, खुदा का शुक्र अदा किया, फिर खुतबे को जारी रखा। उसके इख्तिताम पर एक मर्तबा एक ऐलान किया कि सुनो कि अल्लाह का रसूल वो होता है कि जो लोगों पर लोगों से ज्यादा हक़ तसर्रुफ रखता है, वो होता है रसूल। और ये बताओ क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे आला हूं? ओला का लफ्ज इस्तेमाल किया रसूल ने, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं? तो सब ने कहा बेशक या रसूल अल्लाह कि आप हम सब पर, हम सब के नफूस पर हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। तो मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने पहले इख्तियार का लफ्ज बताया। ओला से मुराद इख्तियार, क्या मैं तुमसे आला हूं? आला से बनाया लफ्ज मौला, ओला से बनाया लफ्ज मौला। पहले इकरार ले लिया कि क्या मैं तुम सब पर तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं? सबने कहा हाँ। तो फौरन अली को अपने हाथों पर उठाया, आवाज दी मन कुंतु मौला व फहाज़ा अली मौला, यानी मैं जिस पर इख्तियार रखता हूं उस पर अली इख्तियार रखता है। माने बदलने का मौका ही नहीं दिया रसूलुल्लाह ने, लफ्ज़ के माने बदलने का मौका नहीं दिया। मैं जिस पर इख्तियार रखता हूं बहैसियत मौला, उस पर अली का इख्तियार है बहैसियत मौला। और ये गदीर का मैदान, इकरार करने वालों ने जन्नत पाई, इनकार करने वालों ने अजाब पाया। मगर बात यह है, ये जो आयत मैं इख्तिताम पे पहुंच रहा हूं क्योंकि ज्यादा तफसील मुझे अर्ज नहीं करना है। अजाब
हारिस पर नाजिल हुआ। और देखिए दुश्मन हैदर जो होता है और खुल के जब इनकार कर देता है, जब खुल के इनकार करता वलायत हैदर, वाकया क्या है, उसने आगे बढ़ के रिसालत माब से ये ऐलान होते ही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि ये जो ऐलान आपने किया और अपने भाई को अपना वसी मुकर्रर कर दिया, ये आपकी तरफ से है कि खुदा की तरफ से है? सवाल कितना सीधा, पहले सवाल सीधा, आपकी तरफ से है कि खुदा की तरफ से है? रिसालत में आपने कहा क्या जानते नहीं हो कि मैं वो हूँ कि जो वही के मुताबिक कलाम करता हूँ, जो वही कहती है मैं वही कहता हूँ। तो ये जो ऐलान था ये मेरी तरफ से नहीं था, ये ऐलान खुदा की तरफ से था। तो अब क्या होना चाहिए था? अगर रसूल ये कहते कि मेरी तरफ से था तो इनकार करने का हक था, मगर रसूल ने ये कहा कि मेरी तरफ से नहीं है, मैं हुक्म खुदा का पाबंद हूँ, खुदा की तरफ से है। तो अब जब कह दिया खुदा की तरफ से है तो फिर कबूल करना था। मगर दुश्मन हैदर वो होता है कि जब खुल के इनकार करता है तो पहले अक्ल पे पत्थर पड़ता है, उसके बाद रब की जानिब से पत्थर पड़ता है। तो अक्ल पर ऐसा पत्थर पड़ा कि उसने ये कहा कि अगर खुदा की जानिब से है तो मुझ पे अज़ाब नाजिल हो जाए। तो अब देखिए रहमतुल आलमीन है रसूल, रहमतुल आलमीन के सामने अज़ाब कैसे मुमकिन है? रसूल रहमतुल आलमीन है और रहमतुल आलमीन के सामने रहमतुल आलमीन की मौजूदगी में अज़ाब नाजिल नहीं होता, ये याद रखिए। रहमतुल आलमीन वो होता है कि जिसकी मौजूदगी में अज़ाब नाजिल नहीं होता। फिर कैसे नाजिल हो गया? फिर ये कानून कैसे टूट गया? ये कानून टूटा नहीं है, बल्कि खुदा के महबूब का रुतबा ये है कि जैसे ही उसने ये जुमला कहा, अब रिसालत में आपने खुद चाहा। अब मैं ये जुमला तो नहीं कह सकता कि तौहीद मुश्किल में थी, तौहीद मुश्किल में नहीं रहती, मगर जाहिरन तौर पर मुश्किल का वक्त तो था, तौहीद पर नहीं था, अज़ाब नाज़िल करने वाले फरिश्ते पर था। करे तो करे क्या, वो अज़ाब तलब कर रहा है और यहाँ रिसालत माब रहमतुल आलमीन मौजूद है। खुदाया करूं क्या? खुदा ने अब रिसालत माब इंतजार करते थे वही का, मगर अब खुदा ने इंतजार किया रिसालत माब के जुमलों का। रिसालत माब से जैसे उसने ये कहा कि एक मर्तबा रिसालत माब ने कहा कि आए परवरदिगार, ये मेरे भाई की दुश्मनी में नहीं, मेरे दामाद की दुश्मनी में नहीं, मेरे चचा के बेटे के दुश्मनी में नहीं, या मुझसे नहीं, ऐ खुदाया ये तुझको चैलेंज कर रहा है मेरे सामने और तुझे इस दिन का वास्ता। रिसालत माब ने कहा कि अब तू बता दे कि मैंने जो ऐलान किया है तो इस ऐलान का मेयार क्या है। तो अब रिसालत माब ने जैसे ये जुमला अदा किया तो खुदा ने फरिश्ते से कहा कि मेरा महबूब खुद कह रहा है, यानी रहमतुल आलमीन की मर्जी शामिल है कि अज़ाब नाजिल हो ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि वलायत अली के इनकार का अज़ाब वो अज़ाब है, चाहे रहमतुल आलमीन मौजूद क्यों ना हो, अज़ाब नाजिल हो गया। ठीक, अज़ाब नाजिल हुआ। कैसे हुआ? बस आखिरी फिक्र, अज़ाब नाजिल हुआ सब जानते हैं क्या हुआ। पत्थर नाजिल हुआ और उस पर सर पे पत्थर पड़ा और फौरन जमीन में धंस गया। सवाल ये है कि अल्लाह की फैक्ट्री में कोई कमी आ गई हथियारों की? क्या अल्लाह ने पत्थर नाजिल किया? तलवार भेज देता, तलवार नाजिल होती, दो टुकड़े हो जाता, या कोई आइटमी हथियार भेज देता। पत्थर ही क्यों? अजीब, देखिए मसलहत है। खुदा और मासूम के हर फेल और कौल में हिकमत पोशीदा रहती है और इस पत्थर में भी हिकमत है। अगर आप गौर करें, तलवार आ जाती तो फिर होता ये कि लोग कहते भाई तलवार की चमक ऐसी थी कि हमने देखी नहीं, बिजली नाजिल हो जाती, जल जाता, राख हो जाता, लोग इनकार कर देते। नहीं, ये मसला भी नहीं है। पत्थर इसीलिए है कि रिसालत माब के एक और कौल को
सच जाहिर करना है। रिसालत मआब वो सिद्दीक हैं जिसे काफिर भी मुशरिक भी सिद्दीक अमीन कहते हैं, सादिक अमीन। एक कौल रिसालत मआब का है, उसका भी इजहार करना था और अली का मेयार भी बताना था और खुदा की हिकमत भी बतानी थी और खुदा की नज़र में अली का मकाम भी जाहिर करना था। इतनी बातें आज, इतने राज पोशीदा थे उस पत्थर में, वो पत्थर में इतने राज पोशीदा थे। रिसालत मआब ने अली से कहा था कि या अली अंता बिमंजिलत काबा, तुम्हारी मंजिलत काबे के मानिंद है। यानी जैसा अब वक्त नहीं है मेरे पास कि इस पर मैं मजलिस पढ़ूं। अली काबे की तरह क्यों है, कैसे है? ये काबे की कामत देखिए, अहले नजर आजाद तशरीफ फरमाए। काबे की कामत चौकोनी, अली की कामत इंसान की तरह, बशर की तरह ज़ाहिरी पैकर। तो किस जाविये से अली काबे की मिसल है? अली मिसाल है काबे की, किस जाविये से? तो ये जाविये देखने के लिए इंशाल्लाह कभी और मैं अर्ज करूंगा, अभी मौका नहीं है वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। अब इतना अर्ज करूं कि पत्थर इसीलिए नाजिल हुआ, तारीख गवाह है, सूरह फील गवाह है कि जिस वक्त अबराहा काबे के खिलाफ, काबे को ढाने के लिए उसने लश्कर भेजा, तो अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए अबाबील भेजे और अबाबील के चोंच में अबाबील के साथ पत्थर भेजे और उन पत्थरों के हमलों से काबे के दुश्मनों को फिन्नार किया। तो अब खुदा बताना ये चाहता है कि मेरे हबीब ने कह दिया कि अली मिसले काबा है, तो अब चाहे काबे का दुश्मन हो या अली का दुश्मन हो, दोनों पे आजाद पत्थर के जरिए आ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आठवें इमाम ने फरमाया कि मोमिनों से मिलो तो ये फिक्रा अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन, कि तमाम तारीफें, तमाम सताइश खुदा के लिए, तारीफ खुदा की, शुक्र खुदा का कि उसने हम सबको वलायत अमीरुल मोमिनीन के रिश्ते से मुतमस्सिक रखा। सुभान अल्लाह। ये कितनी अजीम बात है कि हम अपने मेयार को समझें। वक्त नहीं है मेरे पास कि इमाम ने इन फिक्रों से और फिर मोमिनीन एक दूसरे से वादा की करें। मासूम ने फरमाया गदीर के दिन एक दूसरे से वादा करें। क्या वादा करें? वादा ये करें, शुक्र अदा करें पहले कि हम वलायत की तरफ से रिश्ते में हैं और उसके साथ वादा करें कि ये जो मनसब अल्लाह ने हमको अता किया इसके सदक़े में वादा करें एक दूसरे से, हाथ पे हाथ रखकर कि अगर जन्नत में तुम पहले जाओ तो मेरी सिफारिश करना और अगर मैं पहले जाऊं तो तुम्हारी सिफारिश करना। यह एहतमाम खुदावंद आलम ने किया है। बहरहाल गदीर की बहुत बड़ी अज़मत है। मैं जिक्र इख्तिताम पे पहुंचा रहा हूं। गदीर बयान करना इतना आसान नहीं है और गदीर एक मजलिस, एक नशिस्त में बयान नहीं हो सकती। अल्लामा अमीनी ने किताबें लिखी हैं तो गदीर पर ही 40 साल मेहनत की, तो अल गदीर नाम से 11 जिल्दें लिखी हैं। 40 साल, हजारों कुतुब देखने के बाद, मुताला करने के बाद जब एक लिखी तो 11 जिल्दें बन गई। तो सोचिए कि गदीर की अजमत हम इतने वक्त में क्या बयान कर पाएंगे। बहरहाल खुदा हमारे इल्म में तौफीक में इजाफा फरमाए। दुआ अभी मैं नहीं करूंगा, दुआ इंशाल्लाह जवाद जहर साहब करेंगे क्योंकि वो भी आए हैं तो मैं उन तक भी पहुंचना चाहता हूँ। तो लिहाजा थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमारे परवेज भाई का हुक्म था और उसी हुक्म को बजा लाते हुए मैं अपनी तकरीर को मुंतकिल करता हुआ 2-4 मिनट आपके जल्दी तेज़ी से लूँगा और शोरा कराम की तरफ चलता हुआ शायरी के साथ फिर शायर तक पहुँच के मैं महफिल का अख्तिताम करूँगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पी गया। अच्छा जी, इतनी पिलाई है तो फिर से जो है आइए मैं शोरा कराम की तरफ चलता हूँ। और यकीनन जश्नों और महफिलों का लुत्फ उस वक्त तक आता ही नहीं जब तक कि शेर व शायरी ना हो, क्योंकि शेर व शायरी वो सिंफ है जिसे अइम्मा ने पसंद फरमाई। बहरहाल अजमत है बड़ी। मैं आगाज करता हूँ मुख्तसर से, एक मतला 2 शेर और उसके बाद परवेज भाई का हुक्म है, लिहाजा बड़ी तेजी से अर्ज कर देता हूँ, मुलाहिजा करेंगे।
ताज़ा किताब पेश करता हूँ, पहले बिल्कुल ताज़ा, पहली मरतबा मुलाहिज़ा करेंगे, बतौर खास पेश कर रहा हूँ। पढ़ लें। एक सलवात पढ़िए, आवाज़ बुलंद मोहम्मद। क़याम है गदीर से, सुजूद है गदीर से, क़याम है गदीर से, सुजूद है गदीर से, कसम खुदा की जावेदा दुरूद है गदीर से, कसम खुदा की जावेदा दुरूद है गदीर से, कमाल करबला से आ रही है ये सदा सुनो, कमाल करबला से आ रही है ये सदा सुनो, तमाम कायनात का वजूद है गदीर से, तमाम कायनात का वजूद है गदीर से, तमाम कायनात का वजूद है। और हुक्म के तामील में मैं अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे। इसकी छोटी सी नज़्म है और इसका उन्वान है बताऊं कैसे गदीर क्या है। मुलाहिज़ा करें, बताऊं कैसे कुछ अज़मतें गदीर की रकम करने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा करें, बड़ी तेज़ी से मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बिना तमहीद और बिना रुके हुए। आप बस मुलाहिज़ा कर लें, ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर इल्ज़ाम लोग धरने लग जाएंगे। बहरहाल आइए, उन्वान है बताऊं कैसे गदीर क्या है। मुलाहिज़ा करें, गदीर रहमत का आसमां है, गदीर जन्नत का कारवां है, खुदा की अजमत है जिससे जाहिर, गदीर वहदत का वो नशा है जिसमें तफसीर आयतों की, गदीर कुरान का वो बयां है अब तो माबूद का जो रिश्ता गदीर दोनों के दरमियां है। वही तो लोग बस जन्नती हैं, गदीर जिस पर भी मेहरबान है, गदीर मेहनत है मुस्तफा की, गदीर खालिद का फैसला है, बताऊं कैसे गदीर क्या है, बताऊं कैसे। थोड़ा सा साथ दीजिए, दो चार बंद हैं, ये पहला बंद हुआ, मुलाहिज़ा करें। बताऊं कैसे गदीर मेहनत है मुस्तफा की, गदीर खालिद का फैसला है, बताऊं कैसे गदीर क्या है। तो गदीर अहमद का हौसला है, गदीर ही हक का रास्ता है, गदीर इमामत का सिलसिला है, गदीर इस्लाम की दुआ है, यही गरीबों का मुद्दुआ है, गदीर हर दर्द की दवा है, हर एक फजीलत है महबे सजदा, गदीर का ऐसा मर्तबा है, मुनाफिकत की है हार जिससे, गदीर का वो पहला मारेका है इसकी तबलीग से ये जाहिर, गदीर ज़हरा की एक दुआ है, बताऊं कैसे गदीर क्या है, बताऊं कैसे गदीर क्या है। और मुलाहिज़ा करें, गदीर ईमान की है मंजिल, गदीर मीज़ान हक़ व बातिल, गदीर ईमान की है मंजिल, गदीर मीज़ान हक़ व बातिल है, फिक्र हैरा कलम है लर्ज़ा, तारुफ इसका बहुत है मुश्किल, है फिक्र हैरा कलम है लर्ज़ा, तारुफ इसका बहुत है मुश्किल, न भूल कर भी गुमान करना खुदा का मंशा है इसमें शामिल, यहाँ अंधेरे नहीं मिलेंगे, गदीर तो नूर की है महफिल, पड़ेगी लानत खुदा की तुम पर, न आना इसके कभी मुकाबिल, पड़ेगी लानत खुदा की तुम पर, न आना इसके कभी मुकाबिल, न दूर होना कभी तुम इससे, इसी से दीने खुदा बचा है, बताऊं कैसे इसी से दीने खुदा बचा है, बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, बोलिए, भूख लग रही शायद। मुलाहिज़ा करिए, गदीर रहमत का है समंदर, गदीर से खुश है रब्बे अकबर, गदीर आई वो नूर लेकर, ज़मीं है जिस नूर से मुनव्वर, बफैज़ दावर बनी हुई है, बफैज़ दावर बनी हुई है, गदीर ईदों में ईद अकबर, बफैज़ दावर बनी हुई है, गदीर ईदों में ईद अकबर, हुआ है जो मुनकिरे वलायत, हुआ है जो मुनकिरे वलायत, गदीर बरसाए उस पे पत्थर। और अब ये शेर मुलाहिज़ा करें इस बंद का बतौर खास, बफैज़ दावर बनी हुई है, गदीर ईदों में ईद अकबर, हुआ है जो मुनकिरे वलायत, गदीर बरसाए उस पे पत्थर, ये करबला का बयान सुन लो, ये करबला का बयान सुन लो, गदीर है मकसदे 72, ये करबला का बयान सुन लो, गदीर है मकसदे कैसे, गदीर है मकसदे 72, गदीर तौहीद की मुहाफिज, गदीर दस्तारे अंबिया है, बताओ कैसे गदीर क्या है, बताऊं कैसे गदीर क्या है। और मुलाहिज़ा करें, गदीर बल्लिग की है निशानी, अब मिसरा बतौर खास शौरा इकराम के हवाले,
गदीर बल्लिग की है निशानी, गदीर नबियों की नौजवानी। गदीर बल्लिग की है निशानी, गदीर नबियों की नौजवानी, सदा ये देता है हौज कौसर, गदीर कौसर का ठंडा पानी। सदा ये देता है हौज कौसर, गदीर कौसर का ठंडा पानी, उसी की खातिर बनी है जन्नत, गदीर दिल से है जिसने मानी, गदीर हक की है एक हकीकत, गदीर समझो न तुम कहानी, हसब नसब का पता चलेगा, गदीर शजरों की तर्जुमानी। हसब नसब का पता चलेगा, गदीर शजरों की तर्जुमानी। जिदारे काबा ये हंस के बोली, जिदारे काबा ये हंस के बोली, गदीर अरमान मुस्तफा है, बताऊं कैसे गदीर क्या है, बताऊं कैसे गदीर क्या है। और ये आखिरी दो बंद मैं तेजी दर्ज करता हूँ, मुलाहिजा करेंगे। गदीर सबके लिए भलाई, गदीर करती है रहनुमाई, वही है दुनिया में बस तवंगर, गदीर हिस्से में जिसके आई, हुआ है एहसास बंदगी का, हुआ है एहसास बंदगी का, गदीर की ईद जब मनाई, हुआ है एहसास बंदगी का, गदीर की ईद जब मनाई, बदन से रिश्ता नहीं है इसका, गदीर रूहों में है समाई। बदन से रिश्ता नहीं है इसका, गदीर रूहों में है समाई, गदीर के मुजरिमों को हरगिज, गदीर के मुजरिमों को हरगिज न मिल सकेगी कभी रिहाई, गदीर के मुजरिमों को हरगिज न मिल सकेगी कभी रिहाई, गदीर के मुजरिमों को हरगिज न मिल सकेगी कभी रिहाई, गदीर की हद न ढूंढना तुम, गदीर की 400 हवा है, बताऊं कैसे। आखिरी बंद बतौर खास पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करेंगे। और इस बंद का एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज बतौर खास। गदीर वशम्स की किरण है, अब मिसरा मुलाहिजा करें आमादगी के साथ। गदीर वशम्स की किरण है, गदीर तन्हा ही अंजुमन है, गदीर वशम्स की किरण है, गदीर तन्हा ही अंजुमन है, रहेगा ताजा जो ताबा में अंजुमन है। गदीर वशम्स की किरण है, गदीर तन्हा ही अंजुमन है, रहेगा ताजा जो ताबा महशर, गदीर फूलों का वो चमन है। और शोरा कराम के लिए बतौर खास, गदीर फूलों का वो चमन है, गदीर इल्मो अदब का मरकज, क्या बात है, गदीर मैदान फिक्र फन है, गदीर इल्मो अदब का मरकज, गदीर मैदान फिक्र फन है, गदीर बस एक शहर नहीं है, गदीर ईमान का वतन है। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। गदीर इल्मो अदब का मरकज, गदीर मैदान फिक्र फन है, रहेगा ताजा जो ताबा महशर, गदीर फूलों का वो चमन है, गदीर व शम्स की किरण है, गदीर तन्हा ही अंजुमन है। तो सकीफा वालों के चेहरे देखो, देखो सकीफा वालों के चेहरे देखो, गदीर की आज तक थकन है। गदीर सकीफा वालों के चेहरे देखो, गदीर की आज तक थकन है, हकीकतों को दिखाने वाला, गदीर शफाफ आईना है, बताओ कैसे। एक सलवात पढ़े सबसे पहले ताखीर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। शकील अब्बास साहब के हवाले से के हक का जारी आज यूं फरमान करते हैं रसूल, हक का जारी आज यूं फरमान करते हैं रसूल, मुर्तजा को दीन का सुल्तान, बहुत अच्छा है। हक का जारी आज यूं फरमान करते हैं रसूल, मुर्तजा को दीन का सुल्तान करते हैं रसूल, आए बल्लिग का साया क्या हुआ साया फिगन, दोपहर की धूप में ऐलान करते हैं रसूल, आए बल्लिग का साया क्या हुआ साया फिगन, दोपहर की धूप में ऐलान करते हैं रसूल। सवाल पढ़ दे एक सवाल पढ़ दे मतलब पेश करो कि नबी के दोष पर शेर खुदा गदीर में है,
نبی کے دوش پر شیر خدا غدیر میں ہے، منافقین کا خاتمہ غدیر میں ہے۔ بہت اچھا نبی کے دوش پر شیر خدا غدیر میں ہے، منافقین کا خاتمہ غدیر میں ہے۔ اس نے مطلب دیکھیں کہ یہ معجزہ بھی عجب رونما غدیر میں ہے۔ کیا بات یہ معجزہ بھی عجب رونما غدیر میں ہے کہ پتھروں میں سجا آئینہ غدیر میں ہے۔ بہت اچھا ہے کہ پتھروں میں سجا آئینہ غدیر میں ہے، بقائے دین نبی کی بقا غدیر میں ہے۔ کیا بات بقائے دین نبی کی بقا غدیر میں ہے کہ اس میں سمٹی ہوئی کربلا غدیر میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ صلوات بر محمد و آل بقائے دین نبی کی بقا غدیر میں ہے کہ اس میں سمٹی ہوئی کربلا غدیر میں ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ سوائے کوثر و تسنیم مل نہیں سکتا ولا کے جام کا جو ذائقہ غدیر میں ہے۔ ولا کے جام کا جو ذائقہ غدیر میں ہے، علی کے بغض میں مہلت ملی نہ حارث کو، علی کے بغض میں مہلت ملی نہ حارث کو کہ اس کے واسطے فوراً سزا غدیر میں ہے۔ علی کے بغض میں مہلت ملی نہ حارث کو کہ اس کے واسطے فوراً سزا غدیر میں ہے۔ نظارے خلد کے دیکھے گی اہل دل کی نظر، بہت اچھا مصرع ہے۔ نظارے خلد کے دیکھے گی اہل دل کی نظر، حرم میں در جو بنا تھا کھلا غدیر میں۔ نظارے خلد کے دیکھے گی، نظارے خلد کے دیکھے گی اہل دل کی نظر، حرم میں در جو بنا تھا کھلا غدیر میں ہے۔ حرم میں در جو بنا تھا کھلا غدیر میں ہے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کہیں حیات کہیں پر ہے موت ہے جوہر، کہیں حیات کہیں پر ہے موت ہے، کہیں حیات کہیں پر ہے موت ہے جوہر، کوئی کھلا ہے تو کوئی بجھا غدیر میں، کوئی کھلا ہے تو کوئی بجھا غدیر میں ہے۔ نبی کے دو شیر خدا غدیر میں ہے، منافقین کا خاتمہ غدیر میں ہے۔ چین دنیا میں ملے رات غبا مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاش ہے دل یہ حاضر در دولت پر خاتمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ صلوات بر محمد و آل صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، یا ابن امیر المومنین سقائے سکینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک، شاد اللہ تعالی مخرجک، ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔